کے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں پی ڈی ایم کا جلسہ، کارکنوں کا عوامی نمائندوں کا پراتفاق استقبال۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کارکنوں کا لہو گرمایا۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب بھی جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ جمال لقاری نے شہباز شریف کو سندھی ٹوپی پہنائی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈی ڈی خان میں پی ڈی ایم کا جلسہ، کارکنوں کا عوامی نمائندوں کا پراتفاق استقبال۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کارکنوں کا لہو گرمایا۔ سینیٹر عبدالغفور حیدری، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے بھی جلسہ گاہ میں شرکت کی۔ یہ مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جمال لقاری نے شہباز شریف کو سندھی ٹوپی، جبکہ سابق ایم پی اے علیم شاہ نے حکومت ہوگی تو عوام کے ووٹ کے مطابق ہوگی، ووٹ چوری ہوں گے تو بغاوت کے لیے سب سے پہلے ہم نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک پیغام، کہا جس ملک کی معیشت گر جائے اس کا وجود نہیں رہتا۔ روزگار کی امید دلا کر 30 لاکھ عوام کو بے روزگار کر دیا گیا۔ 25 جولائی 2018 پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ پاکستان سالانہ ترقیاتی تخمینے کے حوالے سے 0 سے نیچے چلا گیا۔ آج کسان رو رہا ہے، آج ڈاکٹر رو رہا ہے، آج وکیل احتجاج پر ہے، آج اسکول کا استاد وہ احتجاج پر۔ 30 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا اور نوکریوں سے نکالا گیا۔ جبر سے آج پیسے کی گردش رک گئی ہے، پیسہ بڑھوتری نہیں کر رہا، ملک کی معیشت جمود کا شکار۔ ڈی جی خان میں پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف پاور شو۔ شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے آج تک عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 3.5 سال بعد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ عوام کا سمندر بتا رہا ہے عمران خان کی حکومت کا وقت پورا ہو چکا۔ ہمارا وقت پورا ہو چکا۔ 3.25 سال، 3.5 سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی اور مہنگائی اور غربت نے عوام کی کمر توڑ دی۔ یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ کون کہتا تھا کہ کرپشن بڑھ جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہوتا ہے؟ کون کہتا تھا؟ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی دربار سخی سرور پر حاضری۔ اویس احمد خان لقاری سمیت دیگر لیگی رہنما بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی صدر نے مزار پر چادر چڑھائی۔ درگاہ منتظمین کی طرف سے رانا ثناء اللہ کی دستار بندی بھی کی گئی۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا سخی سرور پہنچنے پر ضلعی نائب صدر ملک غلام یاسین نے پراتفاق استقبال کیا۔ رانا ثناء اللہ نے مزار حضرت سخی سرور پر چادر چڑھائی۔ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ اس کے بعد لیگی رہنما کو بلوچی پگڑی اور چادر پہنائی گئی۔ ضلعی نائب صدر نون لیگ ڈی ڈی خان ملک غلام یاسین نے ان کو علاقے کے مسائل اور درگاہ سے متعلق تفصیلاً بریف کیا، جس پر صوبائی صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ بہاولپور میں شیخ رنوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ جی ہاں، اب سبزیوں کی قیمت میں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ مزید دیکھیے محمود ظہیر کی یہ رپورٹ۔ بہاولپور میں سبزیوں کی قیمت بھی عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ آئے روز بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں۔ غربت کی چکی میں پستی عوام کا کہنا تھا کہ روزانہ کھانے پینے والی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں سبزی لینے کے لیے یہاں پر آیا تھا، لیکن یہاں پہ تو ریٹ ہی بڑے عجیب ہیں۔
बहुत महंगाई हुई बड़ी है। सब्जियां सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही हैं, जो शहरियों के लिए ज्यादा अजियत का बाइस बन रहा है। अवाम का कहना था कि सब्ज मंडी में भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जबकि बाजारों में ये 2 गुना कीमत पर फरोख्त की जाती हैं। इत्थां वाल भी कुछ रेट सही है, बाहर तो बहुत ज्यादा महंगी है। उथा के रसा को जड़ी 100 रुपए वाली चीज है ना सही, इत्था के रसा को 20 रुपए मिल वेंदी है, 3 गुना ज्यादा है। असा तो ए सही मार्केट कोई रेट इत्था कर कंट्रोल है नहीं, कोई अपना प्राइस कोई चेक करने वाला नहीं, हर बंदे दे अपना रेट है। ई दुकान ते अलग है तो उते अगले ते अलग है। मटर 20 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए फी किलो, अदरक 300 रुपए, लहसुन 265 रुपए और हरी मिर्च 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पीडीएम खुशाब के दर तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम खुशाब के ज़िलाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला अहमद और ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून साबिक सेनेटर डॉक्टर गौस नियाजी ने रैली की क़यादत की। खुशाब में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक सेनेटर और ज़िलाई सदर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर गौस खान नियाजी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मैशत तबाह कर दी है। पेट्रोल, गैस और अशाया खुलोनोश की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है, जिससे आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़िलाई अमीर JUI मौलाना अब्दुल्ला अहमद ने मजीद कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो हुक्मरान 3.5 सालों में कुछ नहीं कर सके, वो आगे भी अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अलीपुर में मुस्लिम लीग नून की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने हाथों और गलों में जंजीरें डालकर गधा रेडी पर बैठकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया। अलीपुर में लीगी वर्कर्स की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो शाह फैसल चौक से शुरू होकर इकबाल चौक पर अख्ताम पजीर हुई है। रैली साबिक तहसील जनरल सेक्रेटरी रशीद खान गोपांग एडवोकेट की सरबराही में निकाली गई। उनका कहना था कि महंगाई ने आम आदमी का जीना धोबर कर दिया है। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। नाअहल हुकूमत फौरी मुस्ताफी हो और साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। शुरका ने हाथों और गलों में जंजीरें डाल रखी थीं। हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी के नतीजे में बेरोजगारी और महंगाई आवाम को तोहफे में मिली है। आवाम के मुंह से रोटी का नवाला तक छीन लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कबीरवाला आमद हुई। उन्होंने साबिक वाइस चेयरमैन महर जफर अहमद हिराज की रस्मी कुल खानी में शिरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने महरूम महर जफर अहमद हिराज के फर्जंद की दस्तारबंदी की और दुआ भी कराई। इस मौका पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने महर जफर हिराज को खराज अकीदत भी पेश किया। सज्जादा नशीन दरबार मूसा पाक शहीद सैयद अबुल हसन गिलानी और साहबजादा सुल्तान अहमद समेत दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। महकमा अनहार की नाअहली हारूनाबाद की 6R नहर में 7 दिनों में दूसरी बार शिगाफ बढ़ गया। 50 से 70 फीट चौड़ा शिगाफ हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर-ए-आब आ गई है। सैलाबी सूरत हाल से तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों और किसानों ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। हारूनाबाद की 6R नहर में शिगाफ पड़ने से हजारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शिकस्ता हाल नहर एक ही हफ्ते में दूसरी बार और एक साल में कई बार टूट चुकी है। ऐसे में दूसरी बार शिगाफ पड़ने से तमाम फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। कई घंटे गुजरने के बावजूद महकमा अनहार की टीमें पहुंची और ना ही शिगाफ को पुर किया गया, जबकि किसानों के पास जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो गया है। ताहम इलाका मकीनों और किसानों ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। बात करेंगे तजावुजात की। शहर औलिया में तजावुजात की भरमार हो गई है। रेहड़ी बानों ने बीच बाजार डेरे जमा लिए। तजावुजात के बाद से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी है। लोगों के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेब गुरमानी। शहर औलिया मुल्तान में नाजायज तजावजात की भरमार। रेहड़ी बानों ने बाजारों के बीच जमा लिए हैं डेरे। तजावजात के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरियों को पैदल चलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहते हैं इंतजामिया कोई हल निकाले ताकि चलने में आसानी हो सके। यहाँ पे आए रोज ये रेडियो ने तंग किया हुआ है, ट्रैफिक हर वक्त रुकी रहती है और यहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी कोई आ जाए तो ये रेडियो ने हमें इतना तंग किया होता है कि ट्रैफिक हर वक्त जाम हो जाती है।
बोसन रोड को इंतजामिया कुशादा नहीं कर रही। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं और शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जबकि रेहड़ीबान भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। कहते हैं इस दौर में रोजी कमाना मुश्किल है। इंतजामिया ठेले लगाने के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम कर दे, वरना तो वो सड़क पर ही रेहड़ियां लगाएंगे। हमने रेहड़ी से ही हमने अपनी रोजगार कमाना, बच्चों का रिज़्क कमाना। सर हमें कोई ऐसी जगह हो जो हम खड़े हो जाएं। अब जगह नहीं है कोई, इसलिए हम इधर साइड पे होकर खड़े हैं, अपनी रोजी बच्चों की कर रहे हैं। बढ़ती आबादी और तजावजात की भरमार के बाइस बोसन रोड समेत शहर की कई सड़कों पर सफर मुश्किल हो चुका है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। अब इस हवाले से इंतजामिया पर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान में नौबहार नहर रोड इंतजामिया की नजरों से ओझल, सड़क किनारे जा बजा पड़े गड्ढे हादसात का सबब बने लगे। शहरी परेशान, इंतजामिया से रोड फौरी मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। औलिया में नौबहार रोड खस्ताहाली का शिकार हो गया। सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढों के बायस आए रोज हादसात पेश आने लगे। इलाका मकीनों का कहना था कि रोड की खस्ताहाली के बायस अक्सर औकात रात के वक्त हादसात पेश आते हैं। आए दिन यही काम होता है, हादसात होते रहते हैं, समझ है ना। चोट लग जाती है, लोग आ जाते हैं 1122 वाले, देख के चले, वो तो इलाज करके चले जाते हैं, जो मरीज ले जाने वाला ले जाते हैं। लेकिन बात करने का मकसद है ये तवज्जो नहीं कर रहे रोड पे। आए रोज हादसात के पेश नजर नौबहार रोड पर बड़ी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि शहरियों का कहना था कि बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए खौफ महसूस होता है। इंतजामिया खस्ताहाल रोड को फौरी मुरम्मत कराए। बच्चे साथ होते हैं, क्यों नहीं डर लगता कि ट्रैफिक होता है, ज्यादा रश होता है, रश की वजह से बंदा कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि रोड को रिपेयर कर ले। जिले इंतजामिया के मुताबिक नौबहार रोड का मुरम्मती काम जारी है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहमियार खान में एमएनए चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइच और एमपीए चौधरी आसिम मजीद ने थली रोड का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि थली रोड की तामीर आवाम का दरीना मुतालबा था, जिसको पूरा कर रहे हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खान में हुकूमत ने तरक्याती काम का आगाज कर दिया। आवाम के मुतालबे पर थली रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया। पीटीआई एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए चौधरी आसिफ मजीद थली रोड का संगे बुनियाद रखने के लिए पहुंचे तो इलाका मकीनों ने ढोल किताब और फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि 22 मिलियन की लागत से 2300 फीट लंबी सड़क का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। 15-20 साल ये मसला था, किसी ने आज तक इस पे तवज्जो नहीं दी। माशाल्लाह इस हुकूमत ने आके चौधरी आसिफ मजीद साहब ने, मैं समझता हूं कि हमारे जो पंजाब के कप्तान हैं उस्मान बुजदार साहब, उनकी मेहरबानी से आज ये मसला हल हुआ है। एमपी चौधरी आसिफ मजीद ने कहा कि थली रोड तक चौक पठानिस्तान पुख्ता रोड तामीर करके अवाम के मवासलाती मसाइल हल करेंगे। आज इस इलाके का बल्कि शहर का 15 साल दरीना मुतालबा पूरा किया गया है। ये थली रोड जो थी ये पूरे शहर की मेन रोड थी और पिछले 15 साल से इसमें खड्डे पड़े हुए थे। बेचारे शहरी तंग थे, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि हमने आज इसका इफ्तिताह किया है और इंशाल्लाह ये सड़क 1-1.5 माह में कारपेट रोड बन जाएगी। अरकान असम्बली ने संगे बुनियाद रखने के बाद अवाम की दीगर मसाइल भी सुने और फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। वक्त तो बदला, लेकिन वाटर वर्क्स रोड मुल्तान के लीनियर पार्क की किस्मत ना बदल सकी। पीएचए ने लीनियर पार्क को ट्रैफिक थीम पार्क बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अरसे बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान के बावजूद लीनियर पार्क को ट्रैफिक थीम पार्क में तब्दील नहीं किया जा सका। ट्रैफिक थीम पार्क के जरिए आवाम को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फ्राहम की जानी थी। पार्क में नशे के आदी अफराद के डेरे हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने भी पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल हो गया। आरोही की खबर पर डीसी ने एक्शन ले लिया और पीने के पानी के लिए नया इलेक्ट्रिक कूलर भी लगवा दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल हो गया। सब्जी मंडी में इससे पहले आवाम के लिए पीने का साफ पानी नापैद था। इस बारे रोही ने खबर देकर इंतजामिया की तवज्जो दिलाई तो इसे होश आ गया और डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में पानी का एक नया इलेक्ट्रिक कूलर लगवा दिया। हाँ नहीं, पिछले दफा डिप्टी कमिश्नर आया था, इन्होंने ना शिकायत की थी, चलो ये शिकायत पूरी हो गई है, इन्होंने लगा दी रोही न्यूज वालों ने।
इनकी मेहरबानी है, बंदों के लिए सहूलत पेश की है। पानी मिल जाता है वो मंडी में, तो बहुत बहुत शुक्रिया जेड़ा पानी लगा दिया। बहावलपुर सब्जी मंडी में पीने के पानी का मसला हल होने पर शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि रोही ने अहम मसले पर इंतजामिया की तवज्जो दिलाई, इससे इनका बड़ा मसला हल हो गया। पहले दूर से जाकर पीने का पानी लाना पड़ता था। पानी मिल रहा है अब, वो ठंडा पानी मिल रहा है, ठंडा यक। तो पहले पानी की क्या सूरत हाल थी? पहले मशीनें खराब हो गई थी, अब मशीनें नहीं लेके आए हैं मशीनें यहाँ पर। चले, अब आप खुश हैं? हाँ जी, मेहरबानी आपकी। रोही जनूबी पंजाब की आवाम की आवाज बन चुका है। रोही का मकसद अवामी मसाइल की निशानदही करके इन्हें हल करवाना है, जिसे अवाम की तरफ से बहुत पिजराई मिलती है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच का एजाज नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। शानदार नताइज आने पर बच्चे और वालिदैन खुशी से निहाल हुए। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। निशात बॉयज हाई स्कूल लोधी कॉलोनी ब्रांच में नर्सरी से 8वीं जमात तक के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बेहतरीन नताइज आने पर प्रिंसिपल शफकत हयात ने खुशी का इजहार किया और कामयाबी का सेहरा स्कूल सीईओ को दिया। इनका कहना था कि जब तक किसी इदारे की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ सकता। सीईओ की बदौलत इनके इदारे के असातिज़ा और स्टाफ बच्चों की पढ़ाई पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। बच्चों के बेहतरीन नताइज आने पर फख्र है। कामयाबी का एक अहम पहलू ये भी है कि हमारे जितने भी जो कैंपसेस हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपसेस हैं और उसके अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके अंदर बच्चों को वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है जिनकी वजह से पोजीशन आती है। पोजीशन लेने वाले तलबा का कहना था कि इनकी कामयाबी वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई के बायस आज वो बेहतरीन नताइज लाने में कामयाब हुए हैं। स्कूल की जानिब से तहाइफ मिलने पर तलबा की खुशी दीदनी थी। आज मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर की वजह से है। आज मैं ज़्यादा खुश हूँ और मैं ज़्यादा खुश हूँ, मुझे गिफ्ट भी मिले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे पेरेंट्स और टीचर का नतीजा है और मैं घर जाकर बहुत एंजॉय करूँगा। साल भर की मेहनत के बेहतरीन नताइज आने पर बच्चों के वालिदैन भी खुश नजर आए। इनका कहना था कि निशात स्कूल में अच्छी पढ़ाई की बदौलत ही इनके बच्चे कामयाब हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में सरजब्ज किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च सैयद फ़खर इमाम और सूबाई वजीर सैयद हुसैन जहानिया गिरदेजी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद देखिए रियाज की इस रिपोर्ट। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में सजा सरसब्ज किसान कन्वेंशन, जिसमें पंजाब और दीगर सूबों के काश्तकारों को जदीद तर्ज से गंदम की काश्त करके ज़्यादा पैदावार हासिल करने बारे आगाही फराहम की। वाइस चांसलर ज़री यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली ने वज़रा को ब्रीफिंग दी। सैयद फ़खर इमाम का कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की ज़राअत में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 8 अरब रुपए की मालियत की सब्सिडी मुख्तस कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़राअत में ख़ास तौर पर पिछले 12 महीने में आप देख रहे होंगे काफ़ी तब्दीली आ गई है कि हमारे जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे गंदम, जिसमें 27.5 मिलियन टन पिछले साल आई है और इस साल हमने टारगेट 28.9 मिलियन टन रखा। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने यूनिवर्सिटी में जदीद तरीके से गंदम की बिजाई भी की। इनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कपास की पैदावार बेहतरीन हुई, जबकि गन्ने की 9 मिलियन टन पैदावार हासिल होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कपास जो एक डाइंग क्रॉप थी, अल्लाह की मेहरबानी से उसको हमने रिवाइव कर लिया है और इस साल बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं कपास के। डीन सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग ने कहा कि किसान कन्वेंशन जैसे प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि अपने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक से मुतारिफ करवाया जा सके। सरसब्ज कन्वेंशन में महकमा ज़राअत, निजी कंपनी और किसानों समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर चिड़ियाघर में स्कूलों के ग्रुप सैर सपाटे के लिए आते हैं। आज छुट्टी के दिन जहानिया से आए एक स्कूल के ट्रिप का बहावलपुर चिड़ियाघर में बहुत अच्छा दिन गुजरा। बहावलपुर शहर और उसकी तफरीगाहें बहुत खूबसूरत हैं। मौसम अच्छा हुआ तो स्कूलों के ट्रिप बहावलपुर चिड़ियाघर में तफरी के लिए पहुंच गए। इसी मकसद के लिए जहानिया के एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप बहावलपुर चिड़ियाघर पहुंचा है। बच्चों और उनके असातिज़ा का कहना था कि चिड़ियाघर में अच्छे जानवर हैं, लेकिन हाथी की कमी को काफ़ी महसूस किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इतने अच्छे चिड़ियाघर में हाथी ज़रूर मंगवाएं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत तफरी की है।
ملتان کی خوبصورتی اور تاریخی ورثے دکھانے کے لیے وسیب ایکسپلورر نے فوٹو واک کا اہتمام کیا۔ واک میں شریک پروفیشنل فوٹوگرافر نے خوبصورت طریقے سے مزارات کی عکاسی کی اور ملتان کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ واک میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سہیب گورمانی کی رپورٹ۔ ملتان کی خوبصورتی اور تاریخی ورثے کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وسیب ایکسپلورر سرگرم۔ دنیا کو ملتان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے وسیب ایکسپلورر نے فوٹو واک کا اہتمام کیا۔ واک میں شریک کیمرہ پروفیشنل نے خوبصورت طریقے سے مزارات کی عکاسی کی اور آرگنائزر نے ملتان کی تاریخی اہمیت اور خوبصورتی دنیا کے سامنے لانے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ملک بھر سے ٹورسٹ حضرات، فوٹوگرافرز، ایکسپلوررز، بائکرز یہاں تشریف لائے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ملتان پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے، اس کا جو تاریخی ورثہ ہے، اس کا کلچر ہے، اس کو پروموٹ کریں، اس کو ایکسپلور کریں اور پوری دنیا کو دکھائیں۔ فوٹو پروفیشنل کا کہنا تھا کہ فوٹو واک کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ ملتان کتنا خوبصورت ہے، اسی لیے فوٹو واک کا اہتمام کیا گیا تاکہ لوگوں کو ملتان اور وسیب کی خوبصورتی کا اندازہ ہو سکے۔ وسیب ایکسپلوررز نے ملتان کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی اور خوبصورت مقامات کے سامنے گروپ فوٹوز بھی بنائے۔ ایک اچھی کاوش ہے پاکستان کے جو اس طرح کے تاریخی مقامات ہیں، تاریخی جگہ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ڈیولپ ہو، اور پاکستان بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم تمام پوری دنیا سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کہ یہاں آئیں، دیکھیں۔ ملتان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ وسیب ایکسپلورر نے دنیا کو ملتان کی خوبصورتی دکھانے کے لیے فوٹو واک کا اہتمام کیا اور مزارات و تاریخی مقامات کی تصویریں بنائی۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سہیب گورمانی، ملتان۔ ملتان میں فیشن کی پہچان کلائیو شوز کی جانب سے لکی ڈرا کا فائنل ہوا۔ مینیجر کلائیو شوز وقاص ربانی اور ایریا مینیجر عاصم رمضان نے خوش نصیبوں کے نام نکالے۔ کسٹمرز کو ایک عدد فیمیل موٹر بائک سمیت بیش قیمتی انعامات دیے گئے۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں کلائیو شوز کینٹ ملتان کے، جہاں 4 اکتوبر سے شروع ہونے والا لکی ڈرا کی قرعہ اندازی کی گئی۔ مینیجر کلائیو شوز وقاص ربانی اور ایریا مینیجر عاصم رمضان نے خوش نصیبوں کے نام نکالے۔ کسٹمرز کو گفٹ ہیمپرز اور فیمیل موٹر بائک بھی دی گئی۔ یہ ابھی ہم نے تقریباً 4 گفٹس نکالے ہیں، جس کے اندر ایک اسکوٹی بائک تھی اور 3 ہمارے رنر گفٹ تھے۔ اور کلائیو پاکستان از دا نمبر 1 برانڈ فیشن کی دنیا کے اندر۔ ایک الحمدللہ شکر ہے اللہ کی ذات کا، ایک منہ بولتا سامنے آپ لوگوں کے، ایک اس نے بہت کم ٹائم میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ مینیجر کلائیو شوز وقاص ربانی کا کہنا تھا کہ قرعہ اندازی کسٹمرز کو کلائیو شوز سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھی ایکٹیویٹی ہم نے یہ سٹارٹ کی اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ٹائم کلائیو شوز لیڈیز فٹ ویئر میں نمبر 1 برانڈ ہے اور بہت زیادہ کسٹمرز کو لائک کر رہے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کے الحمدللہ ہم نے 4 اکتوبر سے شروع کی تھی اور آج اس کے فائنلی ہم نے لکی ڈرا کے ذریعے اسکوٹی جو سی وہ نکال دی ہے۔ قرعہ اندازی میں شریک ہونے والے کسٹمر نے کلائیو شوز میں موجود ویرائٹی کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کلائیو شوز فیشن کی پہچان ہے۔ بائک ملنے کی بہت خوشی ہے، بہترین اقدام کیا ہے وہاں پہ کلائیو شوز والوں نے، اور جو انعام نکلا ہے اس کو پورے طریقے سے انعام دیا گیا، اور چابی جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے آپ ہی اور میں بھی ابھی شادی کے لیے شوز یہیں سے لینے آیا تھا، مما بھی یہیں سے لیتی ہیں اکثر اور میں بھی یہیں سے لگتا ہوں، تو مجھے تو سب سے زیادہ یہی اچھا لگتا ہے اور مما بابا کو بھی یہی اچھا لگتا ہے۔ کلائیو شوز کی جانب سے کسٹمر میں جوسر مشین بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرامین محمد سفیر کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔